पुरी विद्या करूं तपोवन नंदन अभिनंदन नंदन अभिनंदन राष्ट्र चेतना कला साधना खेल भावना विकसे विश्व मानवी बलि गुजराती विश्व सकल माविल से स्नेह सहकार निसाते देवी तू सन्मति सौना साकर संगाते सौ सिद्ध करे उन्नति प्रेम बंधु का समान काना पल पल प्रसरे स्पंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन Good afternoon to everybody. I take this opportunity to extend a very, very warm welcome to our renowned guests today, all my faculty from the School of Sciences and all my dear students. It is indeed a matter of great pleasure and privilege for us to be able to attend the talk of one of a very eminent person who is also a Padma Shri, which we all know is a very high civilian award for us. So I really thank our madam also, our Vice Chancellor madam, for inviting Professor Dr. Bhupendra Kumar Singh Sanjay to be with us and interact with us. And I am thankful to all the students who have come here because they will be enlightened and they will be looking at things from a very different point of view. Sir is a very learned person and he has got a number of degrees, allocates, recognitions, awards from not only India but from all over the world, and the highest award from India also. So just a brief introduction of Sir. He is a Padma Shri recipient, Professor Dr. Bhupendra Singh Kumar Sanjay, and he is a world-renowned orthopedic surgeon from Dehradun, Uttarakhand, India. He has given his distinguished medical and social services to the public by saving hundreds of lives and limbs. He is an orthopedic surgeon inflicted by trauma and tumors. His name is recorded in the Guinness Book of World Records, Limca Book of Records, for his distinguished surgical achievements, and in India an International Book of Records for his rare distinguished social achievements. Sir was born in August 1956 and he has received his basic orthopedic education and training from India and higher orthopedic training and many fellowships from abroad. He has done his MBBS from Kanpur, GSPM College, and MS Orthopedic from PGI Chandigarh, Senior Residency from New Delhi, and he was awarded the Swedish Government Fellowship, the Swiss AO International Trauma Fellowship, the Japanese Chiba Cancer Center Fellowship, many fellowships from Government of India and DST like the Boy Cast Fellowship in India, the American Mayo Clinic Visiting Clinical Fellowship in 1991, Australian Fellowships, etc., and also from Russia. He has worked also at a number of places in the world. King Faisal Specialist Hospital and Research Center in Riyadh, Saudi Arabia, and Associate Professor in PGI Chandigarh, the Professor and Head in many other eminent institutes. His list is very, very long, believe me, students. And I am really honored and I feel great understanding in talking about him. He has not only been giving services everywhere, he has been recognized by many professional and social organizations like SICOT Foundation of France, Dr. Durga Prasad Lokpriya Chikitsak Puraskar, Uttarakhand Ratna, Uttarakhand Gaurav, Masuri Ratna, Vishwa Ratna, and so many more. And he is really unstoppable. He has received the final award some time back, Unstoppable Corona Yodhya Samman in 2020. So on 9th of November in 2021, Dr. Sanjay has been conferred with the 4th highest civilian award of the Republic, that is our Padma Shri Award. And not only that, he is a very good human being. So he has seen a lot of road traffic accidents and he has tried his best to increase the awareness of what these road accidents are about and how much of trauma they cause. So he has started a campaign in 2001, talking about this.
Other than that, I think his work on tumors and cancers is well recognized all over the world. So with this short introduction, his brief introduction, I would say, let us welcome him, and I hand over the mic, please. After my birth, my parents gave the enough food so that I could survive. After the age of the 5 years, they sent me the school. The school was the Hindi medium, government school, and not only this. उन दिनों उस समय हम अपना टाट पट्टी ले जाते थे, बिछाते थे और if I became ill, then my parents got the treatment by a doctor. If not available, then by a bed. Does it make any difference whether you take the treatment from the doctor or from the bed? Both knows the medicine. I survived, so I am educated, healthy. That's why I serve to the society, taking care of my family as well as the families of the others. What is the value of the health? As it is written in our scripture, annam by prana. हम मानते हैं इस बात को, अन्न से ही प्राण है. और आप इसको ये देखिए, if find out the difference, you see that I can make that, and I tell to the people will say, no डॉक्टर साहब, हम तो अब ये है, हमें तो भरपेट खाना मिलता है, हम तो बड़े रिच लोग हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं. अरे भाई, खाने पीने की कमी नहीं होती तो बच्चा 3 फुट का क्यों यहाँ पे आता है जो कि 6 फुट का होना चाहिए. To Professor as well as to Apurva, your fellow, that I believe not only कहते ना एक पंथ दो काज. I do not believe only this purpose, but I say the एक पंथ कई काज. मैंने आपकी मैम से भी कहा है और हम आप लोगों को भी सजेशन देते हैं, whenever you go and visit one place, then try to visit one people, any one people, maybe your relative, maybe unknown person here. You just take that, just send the request. If he is willing to give you the few minutes, probably you will learn lot for that particular. Because to visit over here, see, if I am from 2 different places, I have come from Dehradun and this is Gujarat. No, even this, the girls, you are in this dress. I don't think if you go in this dress, then people will say you are the mad. Oh, आपको ये भी नहीं पता था कि आप हरिद्वार आ रहे हैं, उत्तराखंड आ रहे हैं, तो आपको कपड़े पहन के आने चाहिए थे, ठंडे कपड़े लाने चाहिए थे. वो इसलिए आप सोच ही नहीं सकते, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग. ये तो हमारी एजुकेशन है जो हमें बता रही कि भाई उत्तराखंड में ठंड है. आज से आज 40 साल 50 साल पहले हम लोग पहले कम्युनिकेट करते थे कि if I am going to the Sweden, then what will be the temperature, how cold it will be. We have the idea that oh, the winter Europe in winter, the summer even the cold, but how cold, that one cannot. I had been in the Switzerland in 1986. The temperature was minus 40 degrees. And we were 3 people in the street, one boy from the Baroda and one from the Chennai, and I was. We were roaming in the street and thinking it is the Christmas time, so probably the market is closed or this and that. Then next day we saw in the newspaper, in the news, it came that yesterday the temperature was minus 40 degrees. That was the reason that people were not on the street. It was never the Christmas or post-Christmas. So sometimes, because that's what happens, so when you reach somewhere or visit somewhere, try to do it and this. The second thing from this is, it is not only this, you just visit over there. When you visit over there and meet someone, you spread this message to the others. Why? Can you take this message from there? I had gone to the Ayodhya and I sent this press release. The girl who's taking the photograph, it is my staff, and she is one of the well-wishers to me, and we just send it to the press. Just let a request and send it with the press, and some of them, probably they need the space, they need the content, they need the material, and if they consider it is the worth, they will just publish it or send in the portal. Am I become the popular or not? Say suppose if this message your ma'am receive, your BC ma'am receive, she will be happy or not? We specifically put the name of the all VCs over here, and there is the somewhere should be the name of your vice chancellor as well. Now we come to I personally feel the health, education, nutrition are the fundamental human needs.
But it is unfortunate that both government and the society ignoring these facts. Hence, the country is paying the price. If we are not developed by this time, I saw your university was built up in 1949. Suppose that every student or every alumni from this university goes and becomes a brilliant. Do you think country will need another university? No. So even the one university, if they're serving the purpose, then will. This the picture has been taken from the road of habits. It's yesterday only. Suppose if the government and society has taken care of the health, which give hand, what is hand? H for health, E for education, and for nutrition, which lays the golden X, was well cared in the past, then everybody should have got the golden X in present. But आप देखिए हम लोग कितने समझदार हैं, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार रहे हैं ये सोच के कि बस एक बार हमें सोने का अंडा मिल जाए. But they don't know the hand which gives the golden eggs every day. How much? हम लोग अभी बटोरते नहीं बनते कि हमारे हाथों में कितना सोना होगा. और जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और being a Gujarati, you can understand how many Gujaratis are ruling the world. If not the political, definitely the economical. And political is one of the example of the Gujarat, the son of the soil of this place, then who is not only ruling the country, but indirectly ruling the world. Is it true? Yes, it is true. So we very proud of the Gujarati. I will not say what is the importance of the health, education, nutrition in the other life, but I'll quote in my life. After my birth, my parents gave the enough food so that I could survive. After the age of the 5 years, they sent me the school. School was the Hindi medium, government school, and not only this. उन दिनों उस समय हम अपना टाट पट्टी ले जाते थे, बिछाते थे, पढ़ते. और if I became ill, then my parents got the treatment by a doctor. If not available, then by a bed. Does it make any difference whether you take the treatment from the doctor or from the bed? Both knows the medicine. I survived. So I am educated, healthy. That's why I am serving to the society, taking care of my family as well as the families of the others. What is the value of the health? As it is written in our scripture, annam by prana. हम मानते हैं इस बात को, अन्न से ही प्राण है. और आप इसको ये देखिए, if find out the difference, you see that I can make that, I tell to the people will go, no डॉक्टर साहब हम तो अब ये है, हमें तो भरपेट खाना मिलता है, हम तो बड़े रिच लोग हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं. अरे भाई खाने पीने की कमी नहीं होती तो बच्चा 3 फुट का क्यों यहाँ पे आता है जो कि 6 फुट का होना चाहिए? Can you correlate? I am telling you that this is the exact story. One of the lady came to me, नहीं डॉक्टर साहब मैंने खाना तो खाया, दूध तो बहुत पिया है. भाई दूध पिया होता तो फिर रिकेट्स होता है. आप समझते होंगे साइंस के स्टूडेंट से, रिकेट्स इज बिकॉज द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी और कैल्शियम. तो मैंने कितना पीते हैं आप, ये भी बिल्कुल ट्रू स्टोरी है सर. एक बंदे मेरे पास आए, कहते साहब हमारे पास कितने, कहते नहीं साहब दूध तो कटा रखा है, दूध तो हमारे यहाँ रोज ही आता है. तो कहते कितना दूध आता है? कहते हाँ साहब लीटर दूध आता है, बच्चे भी पीते हैं, चाय भी बनती है. तो हमने कितने लोग हैं? 1 दर्जन. अब बताइए 1 दर्जन बच्चों में 1 लीटर दूध में कितना दूध मिलता होगा? और yesterday I was telling to this trip only to I was suggesting someone, हमने कहा भाई मिलावट करनी है तो दूध में मिलावट करो, क्योंकि दूध की मिलावट है आसानी से पहचानी नहीं जाती. यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, क्योंकि दूध के साथ कितना भी पानी मिला दो दूध रहता सफेद ही. ऐसी कोई और चीज नहीं है. तेल के साथ पानी मिला दो, मिलावट करेंगे पता चलेगी ना. एक दूध ही ऐसा है. इसलिए बहुत से समझदार लोगों ने मिलावट शुरू की तो दूध से की. Probably that is the concept why the Amul dairy concept came in those days, because considering this fact. So when the person is, they say, you can understand that 6 feet person and 3 feet, जो राजपाल यादव फिल्म में आता है ना, और यदि संजय दत्त से कहा जाए कि भाई दौड़ लगाओ या किसी को धक्का मुक्की करो,
कभी राजपाल यादव जीत सकता है? नहीं. So the parents or the nature has given me the natural assets, because we have got the physical asset. It came in my, just in my mind, you can't believe it, but I read it in the, say there are people, and I was sharing the one example of this thing. In the world, out of the 200 people, one person in the male is having the genes of the Genghis Khan. I was telling to the other person, and somebody was telling me, you go to the net and people are looking, especially the Western people are coming to that area, female, to get impregnated. Now this is the matter to ponder. Why they are doing so? Because they are getting the genetic advantage from those people. That is why should not be wasted, rather more and more food should be grown, and the value of the food should not be neglected by anyone. इस बच्चे को देखो, इसको कहीं खाना मिल गया होता, भट पे रिब दिख रही, 12 ही रिब है, कोई भी गिन ले इसमें से. They can count the 12 ribs. But on the contrary, in our country, you see, this is the true picture, has been taken from the mass media. If you go in the harvesting time in the Punjab, this is what is happens. And it is in the go down. The government go down. This is being wasted. Bhook ka maja dekhiye. The person, they are the 4 people having the enough food on the table. Probably, I am sure, not only the 4, even 3, 4, 5 days, if they eat, take it judiciously, probably they cannot finish. And here the one of the boy is looking for the food in the gardens. So this is the situation in our country, and it happens only in India. This boy came to me. And this is the health is not only that. Now you can understand the value of that. Can he run? Can he compete with this? Any boy? And this boy is the 8 years old. He's 8-year-old. And unfortunately, say he is living the place which is 5 kilometers from my place. और कहता, हमने पूछा है यार तुमने हमारा नाम ही नहीं, कहता सर हमें पता तो था कोई डॉक्टर है लेकिन मैं आया नहीं. कोई कहता मैंने इससे कहा उससे कहा. In spite of that, we repeatedly, my staff has called them. They are not coming. We are willing to do the free care for these patients. The only considering this is the contribution from my side to the society. Suppose this boy becomes normal and healthy, do his activity, day-to-day life and pass the life. Do you think he will forget about me? No. Or even if he forget, other people will see him. अरे भाई लड़का कितना टेढ़ा था, सीधा चलना ही लगा. ये कहे ना कहे कि हमारा डॉक्टर साहब ने इलाज अच्छा किया, खराब किया, लेकिन देखेंगे तो लोग. That is the impact of this thing. So we should have that. Mahakavi Kalidas in his epic book Kumar Samam said, शरीर माध्यम खलुधर, क्या ऐसा ही है कुछ. क्योंकि जब तक हमारे पास शरीर है तभी हमारे पास जितने भी हम जो कुछ भी कमा ले, जितना भी कुछ कर ले, सिर्फ हम तभी इसका उपयोग कर सकते हैं अपने ज्ञान का, अपने धन का, when we are healthy. So this is the value of the healthy life. Body is the only means to fulfill any duty. So it's absolutely necessary to keep the body healthy. To protect and keep the body healthy, health should be the highest priority of the individual than anything else in the world. हम लोग अभी ये लड़कियां से विटामिन डी खाने की जरूरत है, कैल्शियम की दवाई की, हीमोग्लोबिन की, आयरन बढ़ाई, नहीं. फोन अच्छा होना चाहिए, कपड़े अच्छे होना चाहिए. Certain girls are so obsessive, उनको आप कह ही दो कि कल पार्टी है तो ब्यूटी पार्लर में 2000 रुपए खर्च कर देंगे, और कहीं आपने ये कह दिया पार्टी कैंसिल हो गई, तब बताइए क्या होगा. There is a lot of discrepancy in healthcare services in India. There are facility of air ambulance in certain corporate hospitals in cities, while there is no mortuary van to carry dead body in rural and remote areas. It's very unfortunate. It happens only in India. And these news are common. Every day you will see all this. Education is the third thing that is important for the physical and mental development of an individual. Education gives employment, and employment leads to financial independence and nation growth. Many people say the education is meant for employment. Yesterday, I was in the Dholavia. The boy who was from the very close area, 5 kilometers or so, मैंने पूछा भाई कितना पढ़ लिया,
कहता मैंने 12th कर लिया, तो कह रहा अब नहीं पढ़ता हूं, पढ़ने में क्या रहा। तो हमने क्या करेगा, यार मेरे पास 20-25 बीघा जमीन है, खेती करेगा। तो हमने बस इतना ही बना रहेगा और क्या करेगा भाई, खेती करेगा, लाइब्रेरी रहेगा, इससे ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं। सपोज कर लो मैंने उससे ऐसे ही कहा कि तेरे पास भाई पैसा अगर रिसोर्ट खोल सकता है क्या साहब रिसोर्ट तो नहीं खोल पाऊंगा। सपोज इफ यू गेट द एजुकेशन, 12 से बीए करता, एमबीए करता, कहीं से एमबीए कर लिया, कोई उसको कुलीग मिल गया, किसी मैनेजमेंट में उसे भेज दिया, देन कैन यू ओपन द रिसोर्ट और नॉट? If he has got the 25 giga, if I believe or we believe over his statement. So this is the until unless brain is developed, nothing, everything is useless and you cannot utilize. Say the uneducated, educated person is the only this much difference. Not much difference. The all are living, the uneducated people, I consider they are doing the all both those things, खा रहे, पी रहे, बच्चे कर रहे, इसके आगे कुछ नहीं कर। और इतना दुर्भाग्य की बात है कि जिनको पैदा कर रहे हैं उन्हीं का ख्याल नहीं रख पाते। और हम में से आप जितने लोग बैठे हैं अपना तो ख्याल रखेंगे, आई एम श्योर, हम दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। Another thing I want to tell you, all of you, education is not mainly meant for the employment. No, it is meant for the empowerment. So if you are empowered, then you can get everything else. That's what. Another I have not over here. Country doesn't need only the he-man. He-man you understand? जो धर्मेंद्र जैसे हैं या आपने कहा संजय दत्त जैसे हैं या रणवीर सिंह. No. I mean to say, country doesn't need only the he-man. Country needs the he-woman as well. Do you agree or not? How? Are you going to change the gender? No. That he means healthy and educated. The country needs the healthy, educated men, and similarly the country needs the healthy and educated women. Once the girls are healthy and educated, I am sure they can compete with anybody. So that is the another message. I always give this spread. I write the column for the pioneer guest column, and we mention and they give the title should be as catchy because the people can understand and can keep in the mind. But unfortunately, as I mentioned, not getting education. If someone is getting it, then it is not as good as it should be. You see the education status. This is the Doon school building, and you must be understanding the photo, Sanjay Gandhi and the Rajiv Gandhi. And this is another picture. This is the photograph. This photo is not from the remote area. This has been taken from the New Delhi. This is the capital of India. And the flyover wall is being used as a blackboard. And suppose कि आप सब लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, यदि बॉलिंग का ही रोल है ना सर, आरसीसी की बिल्डिंग बनाते हैं जब हमारे घरों में 10x10 की बीम होती है, 10x10 का होता है वो होता है, और किसी ब्रिज में हमारे 10 टाइम्स इवन 1 पिलर होगा। यदि एक स्लैब को 10 मीटर की एक स्लैब को कम कर दें और उसको आप कैलकुलेट करें तो 10 मीटर की स्लैब में एक स्लैब में 10 स्कूल बन सकते हैं। And there is the role of the engineers and architects. They can build up in such a way that they can reduce the resources and they can, with the same amount of money, they can make the difference to the society. There is a provision of the right to education. आज तो हमारे education में भी है. But is there any right to get the qualified teacher? ऐसा है कोई provision? ऐसा नहीं है। कई आपने देखा होगा, अभी हम देखते रहते हैं, 5 क्लास प्राइमरी का टीचर है, प्राइमरी के क्लास को उसका सेंटेंस नहीं पढ़ पा रहा और उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। सो दैट इज द स्टैंडर्ड इन दिस। Of course, the literacy is the cornerstone of the education, but the quality of education depends upon the quality of teaching. I personally feel the quality of work depends upon the quality of work. Do you agree? And the quality of worker depends upon the quality of the health, education and nutrition given to them. That is the responsibility of the society as well as the nation. That when the quality of the education will improve,
the quality of work will improve, and our workers or the Indians are being recognized because of that only reason. Because we are the well qualified people. To the all teachers who have come here, the contribution you are making to the nation building through education is not only commendable but incomparable. We should always express our gratitude to the teachers, and teachers should also express their gratitude to their teachers. On the importance of the teachers in life, I have written a poem in my poetry book, which I want to recite to all of you. The title of poem is Guru Ki Mahima. I can't tell you. Can you bring the book, Sonia? Okay. But I'll say only the two things about that. Guru Gobind do khade kaake lagu paye, balihari Guru aapne Gobind diyo bataye. Because it is the teacher only, Guru ki Mahima ne kam. Unfortunately, this is what is the importance. We are the, if I tell my story myself, it is only, I am not because of the, I am here, yeah, of course there is the contribution of my parents, but if it is the, any important contribution who is given to me, it is my teachers. मैं आज भी कहता हूँ, the importance or the importance and the salary or the financial support is given to the teachers. The same way as it is given to the Senate, the country will not need the police or किसी तरह के हमें इसकी जरूरत नहीं होगी जब हम लोगों को किस तरह का, क्योंकि जिस दिन इस देश में शिक्षकों की क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगी उस दिन हम समझते हैं ना हमारे देश में पुलिस की जरूरत होगी ना सैनिकों की जरूरत होगी। और आज हमारी पुलिस कर क्या रही है, कभी हमें यहां हकाती है कभी वहां करती है, यही कर रही पुलिस। आप ट्रैफिक पे तो देख ही सकते हैं, पुलिस को बताना पड़ रहा कि आपको लेफ्ट साइड जाना है राइट साइड जाना है, हमें बताना पड़ता है कि यहां खड़े हो ना खड़े हो, कार को यहां खड़ी करो ना खड़ी हो। आई हैव सीन इट एवरीवेयर एंड दिस इज सिचुएशन इज ऑल ओवर द कंट्री. It is not only the UP, Bihar. It is everywhere. Everywhere I have seen it. Guru ki Mahima, I want to recite it. गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु की प्रतिभा तो अर्जुन बना ही देती है, लेकिन उसकी प्रतिमा भी पैदा कर देती है एकलव्य है गुरु के ज्ञान का प्रभाव। पर गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा लेना घृणा की निशानी है। द्रोणाचार्य पहले भी थे, द्रोणाचार्य आज भी है, पर आज देश को राजगुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरु की नहीं, जिन्होंने जानबूझकर कर्ण और एकलव्य को सिखाने से मना कर दिया, बल्कि आदि गुरु वाल्मीकि जैसे गुरु की जरूरत है, जिन्होंने अजनबी त्यागी मां सीता के बच्चों को भी सिखा दिया। या फिर महर्षि गौतम जैसे गुरुओं की आवश्यकता है, जिन्होंने ज्वाला के अज्ञात कुल के पुत्र को सत्यकाम नाम दिया। ऐसा नहीं है कि अच्छे गुरु पहले ही थे, अच्छे गुरु आज भी है। सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार एक उदाहरण है, जिन्होंने सोच तो वंश तो गरीबों के बच्चों को ही प्रतिभा को न केवल खोजा बल्कि उनको मान दिया, ज्ञान दिया। आई डोंट नो वेदर यू हैव नोटिस नॉट, आपने देखा होगा वाल्मीकि जी की एक वहां पे पोर्ट्रेट लगी हुई है, जहां पे अभी हम खड़े हुए थे, ये लगी हुई, because this only they can, it is the university, they can understand, otherwise people would not understand all these things. I believe that if everybody gets these three things, health, education, nutrition, then everyone will be healthy, happy and capable to contribute appropriate to the nation building. Nation building is not only the duty of the individual, but it is the duty of the whole citizen. Contribution to the nation building should be the duty and responsibility of every citizen. When every person contributes to the nation building, the country will progress by leaps and bounds. If the stature of the nation will be small, then naturally the stature of the all countrymen will be small. But when the stature of the nation increases, the stature of the all countrymen will increase in the same proportion. And Gujarat is the one of the land which has proven to the whole world. Because I can quote it, I had the experience, I traveled almost the 45 countries, and I've seen when I traveled, say something around the 40 years back, 86 or so. And now, how the Indians are considered in the airport than the others time also. So that is because the only one person can make the difference in the status of the India. And of course, these are the leaders and the policy makers. They can contribute a lot to the nation also. Our Honorable Prime Minister has proved this through his various actions in the last 9 years. For this, I heartily thank Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and all his colleagues from this platform.
We all should contribute to the national welfare through our work. In my opinion, we all should be identified with work and not by caste, creed, religion, gender or reason. If this happens, then not only our Honorable Prime Minister's dream of becoming a self-reliant India will be fulfilled in the real sense, and the statement of our Excellency the President that the poor can dream and also fulfill their dream will be meaningful. The truth is that the person who knows the secret of the health, education, value of the food, he not only gets the physical, mental, and financial prosperity, but he also gets happiness and his fame is spread all around. ये मकाराना है, ब्राजील में जब ये वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद में एक वर्ल्ड कांग्रेस में गया था, मेरी वाइफ यहाँ बैठी हुई कह रही थी, अरे आप यहाँ पे कपड़े उतार रहे, अरे मैंने कहा भाई यही तो जगह है जहां उतार सकते, बताइए हम साहब देहरादून में कपड़े उतार के जा सकते हैं ऐसे? नहीं, अननोन जगह पे आप ऐसे काम कर सकते हैं। दूसरी आपने जो यहीं पे कहे देता हूं, whenever you have the in your mind, you express your feeling. क्योंकि ऐसी जी पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, पैसा, प्यार, प्रोत्साहन, पुरस्कार पाने की सबकी कामना होती है, सबकी कामना होती है। और आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे तो वो आपको तो अप्रिशिएट करेगा ही। आप तो सब साइंस के स्टूडेंट हैं, कुछ आप देंगे तो होगा ही, मिलेगा ही, रिएक्शन है। जब आप एक्ट करेंगे तो रिएक्शन तो होगी और उसका प्रोडक्ट भी होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई यू मस्ट इंटरेक्ट। ये हमें जब पद्मश्री मिला 2021 में तब है। और मोदी जी का, मैं मोदी जी के बारे में आप लोग तो बहुत जानते भी होंगे, सुना भी होगा, देखा भी होगा। मैं एक ही बात कहता हूं, चूंकि आप गुजरात के हैं तो आप तो इन सब चीजों को जानते होंगे और मोदी जी को कई लोगों ने तो नजदीकी से देखा भी होगा, मिले भी होंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं कहता हूं, इस फोटो से आप एक मैसेज देखिए कि आपको ऐसे नहीं लगता कि मोदी जी और हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हो। फोटो तो ऐसा ही कहते हैं। सच में ये हमारी फर्स्ट और लास्ट मीटिंग थी उस समय। लेकिन मोदी जी का व्यक्तित्व तो एक ऐसा है जो किसी को खींच लेता है। आई एम नॉट जस्ट बिकॉज आई एम इन गुजरात, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, नॉट बिकॉज आई से दीज वर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोदी जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो किसी को, वो पराये को अपने बनाने में वो माहिर है। और हम लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ तो ये कमी है कि हम तो अपने को भी अपना नहीं बना पाते। और मोदी जी इसके बिल्कुल विरोधी हैं कि अपने को तो वो अपना बना ही लेते हैं, लेकिन दूसरे को, परायों को भी अपना बना लेते। यही उनकी खासियत है। इसी के कारण वो काम, किसी को काम असाइनमेंट देते होंगे और अपना ही समझ के तो कोई काम नहीं करेगा। यदि आपका सच्चा दोस्त है, आपसे कहे बेटा हमारा दोस्त एक काम करके आओ, करता है कि नहीं करता? क्योंकि ये सब अपने ही करते हैं और इस बात को समझते हैं। दिस द वैल्यू ऑफ दिस फोटोग्राफर। हेल्थ में हर्षवर्धन वाज द हेल्थ मिनिस्टर, ही इज द my batchmate, we did MBBS together from the Kanpur। और इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, ये हमें, ये आपके राजस्थान की संस्था है जिन्होंने सेवा संस्थान, नारायण सेवा संस्थान है, इन लोगों ने मुझे ऑनर किया। कई इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, दे हैव ऑनर्ड मी। अब देखिए पिक्चर भी बिल्कुल जानबूझ के लगाई गई है। डॉक्टर शिवशंकर वाज द प्रेसिडेंट। हो तो कहते संजय यार देखा है, पद्मश्री का नाम तो सुना है, क्या मैं छू लूं? तो मैं उनकी बात से इतना हुआ, हमने कहा डॉक्टर साहब इसको जरूर छूइए। और मैंने ये अब नियम बना लिया है कि यदि हम लगाते और हमारा दोस्त होता है तो हम एक ऐसे दोस्त हैं, बहुत कम ऐसे दोस्त होंगे जो अपनी स्त्री को हाथ लगाने का हाँ कहें। हम हाँ ही नहीं कहते, हम ऑफर भी करते। वो क्यों? क्योंकि लोगों को तो देखने का ही मौका नहीं मिलता है, छूने तो बहुत बड़ी बात है। और हम समझते हैं हम दोस्त के नाते यदि उसको इतना नहीं कर सके तो दोस्ती किस बात की फिर। ये हमारी पहली गवर्नर हैं, देन गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी चीफ मिनिस्टर हैं। और इसको हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, हेल्थ नॉट ओनली इन एसेट बट ए रिसोर्स व्हिच मस्ट बी नर्चर्ड बाय ऑल। Therefore, people associated with these sectors should not work with the sole objective of the commercial profit. Rather than actions should be based on the human ethos. But unfortunately, in our country, some people in these three sectors are working not on the principle of the business. यदि मैं हिंदी में कहें तो कुछ लोग तो इसको इसी पे काम कर रहे हैं, बिजनेस के ही प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कर रहे हैं 1 2 का 4 4 2 का 1। जहां उन्हें 1 रुपए कमाना चाहिए वहां वो 4 रुपए कमा रहे हैं, और जहां उन्हें 4 रुपए लगाना चाहिए वहां 1 रुपए लगा रहे हैं। इसीलिए परिणाम उसके ऐसे आ रहे हैं।
one can understand how inequitable this principle is and how many anomalies and distortion it will create in the society that we are seeing every day. According to Buddhists, our life is shaped by our mind. We become what we think. हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं. Change is universal truth. परिवर्तन सार्वभौमिक सत्य है. To bring any change, first we should change in our behavior and thinking process. भुज में मैंने कल वहां पे कल नहीं परसों देखा है अर्थक्वेक का जो म्यूजियम है, वहां एक ही बार बार चलाई जाती है जो मैंने अपने दिमाग में लट ली. जब वो चलाते हैं ना प्रोग्राम, कुछ लोगों ने आपने देखा होगा, परिवर्तन सार्वभौमिक सत्य है. ऐसा नहीं है. और हम लोग सब परिवर्तन से डर जाते हैं, ये होगा वो होगा. और परिवर्तन इट इज नॉट विद इन, चेंज इज नॉट विद इन आवर हैंड्स. हम कोई लोग चेंज को रोक सकते हैं जो कुछ हो रहा है? इज इट इन आवर हैंड? नो. सो व्हाट वी हैव टू डू विद दिस चेंज? वी हैव टू अडेप्ट विद द चेंज. वी हैव टू फेस दैट चेंज. जैसे आप हैं, अभी आप लोगों की लड़कियां जितनी बैठी हुई हैं, हमारे ख्याल से लड़कियां जब दूसरे घरों में जाएंगी तो परिवर्तन तो हो ही रहा ना आप में. तो आप बाप को बदलेंगे, मतलब अपने फादर इन लॉ को बदलेंगे. एक बार तो आपने बदल लिया, कितने बार आप फादर को बदल सकते हैं? है कोई ऐसा? सो whosoever is with, whosoever is the father in law. मैं वही कह रहा हूं लड़कियों के लिए मैम, कि जो भी आपको सास ससुर मिलता है उसी के साथ आपको अडेप्ट करना पड़ेगा. ये बड़ी अनफॉर्चुनेटली हम लोग देखते रहते हैं, अरे भाई वो ऐसी सास थी, वो ऐसा ससुर था. अरे भाई एक जब दूसरा आदमी है तो दूसरा तो अलग होगा या नहीं होगा? आप ये बताइए, आप तो सब बच्चे हैं, आपके आने वाले बच्चे सब का आपकी तरह होंगे? आप चाहते भी हो. मैं तो कहता हूं आप देखिए, वन ऑफ द एग्जाम्पल द ऐश्वर्या राय. क्या उसकी बेटी ऐश्वर्या राय की फेस की है? नहीं. So the change is universal even with the genetic mutation. और ये हमारे आपके में नहीं है. आजकल तो कितना भी आप लोग तो साइंस के स्टूडेंट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, जीन्स को यहां बदल दिया वहां बदल दिया, कितना हम बदलेंगे? हो सकता है कि माँ की नाक अच्छी है तो हमारे बच्चों में भी माँ की नाक आनी चाहिए. बाप का रंग अच्छा तो बाप का रंग ही आ जाना चाहिए? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल. सो वी हैव टू एक्सेप्ट विद द चेंज. एंड हाउ कैन वी ब्रिंग द चेंज? टू ब्रिंग चेंज इन आवर थिंकिंग प्रोसेस, द मोस्ट थिंग इज कन्वर्सेशन अमंग पीपल. जो हम यहां कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करने आए हैं, आपको ट्रांसफॉर्म करने आए हैं. और जितना कर देंगे उतना बहुत अच्छा होगा. तो आप भी इसको पॉजिटिव एटीट्यूड से लीजिए कि मैं यहां पे चेंज ही होने आया, कुछ ना कुछ तो चेंज हो. द सॉल्यूशन टू दिस इज विच आई हैव गिवन एन एक्रोनिम विच इज DUES. D for diet, E for exercise, W for work and S for sleep. सभी लोग बच्चों से, खास तौर से और चीजों को मैं तो बताता हूं. डाइट के लिए सच में हमने बहुत कम लोगों, हम तो रोज ही ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, बहुत कम लोगों को देखा है जिनके पेट बहुत बड़े हुए हैं, जिनका कुछ जैसे ना मटका जैसा या तरबूज जैसा लटका हो. बहुत कम लोगों को देखा है. हो सकता है गुजराती खाने का भी हो, कल्चर का भी हो. लेकिन यदि आप नॉर्थ में चले जाएं, हम नहीं समझते. आप जाइएगा कभी हरिद्वार में, देखिएगा तो आप देखिएगा आप जैसे दुबले पतले कोई वहां मिल जाए जिनका पेट ना हो. वैसे वहां तो हर आदमी पेट वाला ही लगता है मुझे. तो दिस इज द वन एक्सरसाइज. यू मस्ट डू द एक्सरसाइज रेगुलरली. जो वॉकिंग है आप कर सकते हैं, इसको करना चाहिए. एंड वर्क इज द वर्क. के बाद में जरूर आप लड़कियों को बताऊंगा, बच्चों को बताऊंगा कि कोई बात नहीं, पहले तो आपको जो पसंद हो वो आपको काम मिलना चाहिए. बहुत अच्छा, वट एवर यू लाइक यू गेट इट इज द बेस्ट. इफ यू कैन नॉट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, फिर जो आपको मिल जाए उसी को पसंद करने लगा. सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना इंपॉर्टेंट है यदि जिसको नींद नहीं आती उसको पागलपन के लक्षण है. तो आप सोइए. खास तौर से सोने के बारे में, ड्रिंक और ड्राइविंग, ड्रिंक की तो बात नहीं करता हूं, लेकिन यहां ड्राइविंग. एवरीबडी आस्क फ्रॉम मी व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस. I tell them that the trio of behavior, knowledge and skill are secret of success, not only for me, but for everyone. And it is in the same order. Behavior comes the first, then the knowledge, and then the skill. And if you forget the secret, then just remember my initials, BKS. B for behavior, K for knowledge, and S for skill. Success of any individual depends upon application of behavior, knowledge and skill in individual's day-to-day life. There is role of the 60% behavior, 30% knowledge, 10% skill. मानते हैं आप लोग कि नहीं? चलिए मैं आपको सिंपल बताऊं.
हम लोगों की शादियां होती हैं, आप लोगों की कुछ की हो गई हैं, कुछ सोच रहे होंगे, तो बोलिए शादी पहले बाद में होती है, बच्चे बाद में होते हैं ना? पहले तो बातचीत ही होती है ना सड़क पे। और लड़की ने या लड़के ने, खास तौर से लड़कों को प्रपोजल शायद अच्छा नहीं आता है, समझ नहीं हुए उन्हें, तो कहीं गलत तरीके से करते हैं तो फिर सैंडल ही पड़ती ना। So that is the behavior matters the most. Whatever you have the skill, you have to give it through the behavior. क्योंकि because the behavior is the first step. Interaction हमारा तभी होता है। कई बार होते आपने देखा, वो ठग लोग कौन होते, उनमें behavior ही अच्छा होता ना सर। नॉलेज स्किल की तो बाद ही की बात होती है। और हम डॉक्टर्स में भी, सभी हर प्रोफेशन में, आई एम नॉट सेइंग इन दिस प्रोफेशन, सो बिहेवियर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी स्टेज ऑफ द ह्यूमन लाइफ. So the behavior played an important role in every stage of the human life. We get married and have children later. First of all, there is conversation where behavior matters most. I have already written a column in Pioneer. Those who are interested, they can find out in the Google just by writing Pioneer and my Pioneer as .in and my name, you'll get it that time. Key to success. And idea इसका सिर्फ यही होता है to spread the message. Being an orthopedic surgeon, I have seen various aspects of road traffic accidents in my more than 40 years of the experience. मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा. Road traffic accidents had not taken a form an epidemic in our country in which 50% of the accidents occurs among young people. आप सोचिए 18 से लेके 40 साल के लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. अब आप सोचिएगा, और ये वो लोग होते हैं जो ब्रेड अर्नर होते हैं, क्योंकि पैसे तो यही कमा के लाते हैं. आप इसको ऐसे सोचिए कि यदि आपका हो जाता, आपके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरे, किसी के भी आपके दोस्त का हो जाए, क्योंकि आज बच्चे भी लिमिटेड, माँ बाप के लिए आप सहारा है. ये हमारा सोशल स्ट्रक्चर इस तरह ऐसा है कि बच्चों को बाप बढ़ाते हैं, तो बाप को भी तो फिर सहायता की जरूरत होती, तो बच्चे करते हैं इसको लिए. एंड लाइफ इज वेरी प्रेशियस. तो इसलिए इसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्योंकि इस तरह की घटनाएं घटती है. 42 साल का लड़का है, टूट गया, बिल्कुल क्रश बन गया. जब इनको काटते हैं, इनकी टांग कट जाने की होती. दैट्स व्हाई आई हैव सेड, हमारे यहाँ एम्पुटेशन नहीं होते. हम जितनी कोशिश करते हैं टांग बचाने की कोशिश करते हैं. और इसमें आप इसको देखिए, इट आई हैड डन इट. आप सोचिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते किस वजह से? पैसेंजर की वजह से, कार की वजह से, रोड की वजह से, या ड्राइवर की वजह से? ड्राइवर की वजह से. 90% ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स आर बिकॉज ऑफ द ड्राइवर. अब ड्राइवर में क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो पहले बताए? बिहेवियर. ये वो सड़क पे यदि बहुत फास्ट चलता है तो गाड़ी स्लो चलाता होगा? बताइए. यदि सड़क पे उसकी नजर ऐसी टिकी नहीं रहती, इधर उधर देखता रहता है, तब सड़क पे चलता होगा, तब चलाएगा कि नहीं? चलाएगा. लड़की हाँ कह रही, बिल्कुल सच है. ये तो ह्यूमन बिहेवियर है. इनका भी ऑब्जर्वेशन यही होगा. इन माई ओपिनियन, लैक ऑफ स्लीप एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल आर द मेन कॉज ऑफ द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच लीड्स टू ओवर स्पीडिंग. जब आदमी शराब पी लेता है तो उसे पता ही नहीं चलता सड़क पे चल रहा है या गटर में, पता नहीं चलता. अब ये तो रोड ऑफ हेवेंस रखा है. कई बार तो लोग देखने नहीं चला जाए, कहीं हमने फोटो खींची हुए तो कई लोग तो यही चले भाई. और सच में यदि आप धुंध में जाएं और सड़क पे आप गाड़ी चलाएं, सर आपने, आप लोगों जिन लोगों का अनुभव हो, आपको सच में नहीं पता चलता कि आप जमीन में हैं आसमान में. धुंध नॉर्थ में इतनी होती है. सब चीजों को ध्यान रखिए, खासतौर से लड़कों को ये बताइए, बिकॉज इट इज लॉ. ये सड़क दुर्घटनाएं गरीबी बढ़ा रही. बेटा किसी के साथ हो जाता है, उसकी टांग टूट जाएगी, तो ये गरीबी बढ़ रही है उसकी, क्योंकि जो कमा रहा था वो नहीं कमा रहा. बिजनेसमैन, आप इंडस्ट्री से देखिए, साइरस मिस्त्री के साथ क्या हुआ. कहते 50,000 करोड़ की बढ़त थी. इट हैज बिकम वन. सो एवरीबॉडी इज लूजिंग बिकॉज वी आर नॉट अर्निंग एट दैट टाइम. सो एवरीबॉडी, हम तो इसको कहते हैं, कहीं हमने लिखा हुआ. और ड्राइविंग, सड़क चलाना है बिहेवियरल प्रॉब्लम. हम सीख सकते हैं इस बात को, ऐसा कुछ नहीं है. अब खास तौर से जो ओवरटेकिंग, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, यूजिंग मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग, ऑल दीज आर बिहेवियरल प्रॉब्लम. ये हमारे बिहेवियर में जिस दिन हमने कह लिया कि or which originates from the mind, and to change the behavior of such fickle minded drivers and to control their mind, educational institute like yours can play a huge important. मैं तो कहता हूँ यूनिवर्सिटीज में, we have given a lectures almost 200 free public awareness lectures, many universities. अभी हमने एम्स देवघर में दिया था, आईटी रुड़की में दिया था, ये आपकी यूनिवर्सिटी है. अभी हम किसी एक और भवन में बिहार में गया था, उस समय करते हैं ओरेशन हमने इस पे दी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. इसलिए एंड दिस आई कंसीडर इट इज माय कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, क्योंकि लोग हमें जानते हैं, हमने देखा है, नजदीकी से बेटा देखा है, नजदीक से देखा. लड़की के एक एक्सीडेंट हो जाता, लड़के लड़की जिससे आप शादी होने वाली थी वो शादी नहीं होती है, शादी हो जाती तो टूट जाती है. कई लोग तो बच्चों को भी छोड़ के चले जाते. बात कुछ हद तक उनकी ठीक भी है कि अब जिंदगी भर कैसे झेलेंगे इसको.
तो कुछ लोग इतने दमदार नहीं होते हैं कि भाई जैसे जो हो गया सो हो गया. तो दिस थिंग हैपेंस एंड देन यू शुड कंसीडर दीज थिंग्स व्हाइल यू आर इन द रोड टू कंसीडर द ड्राइविंग. ये जो हमने फ्री कैंप्स देते रहते हैं. वी स्टार्टेड इन गढ़वाल पोस्ट इन 2001 एंड आई एट दैट टाइम आई सेड ये महामारी है रोड. लोग विश्वास नहीं करते थे, सर तो पागल हो गए ऐसे बोलते रहते का. दिस सच है सर. So we give this all time for disability. The disability in the country, the disability, road traffic accidents and contributing increase of the disability in this. हमारे यहाँ 2.1% लोग disabled हैं, जिसमें 20% ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी हैं, जिनको चलने फिरने की बात आती है उनको वो कहते हैं. ये अभी हमने देते ही रहते हैं. इस समय हमने कभी अभी भुज में भी दिया हुआ है, एक रिकॉर्डिंग करके आए. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के हफ्ते 10 दिन में उसको होने लगेगा. दैट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड रिकॉर्ड. ऑल दीज थिंग्स. बिलीव द मोबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द हार्ट एंड लंग्स. आवर फीट एंड नॉट बीन वॉकिंग वी वुड नॉट हैव रीच्ड ओवर हिल. हम चल नहीं रहे होते तो हम सब आप यहाँ नहीं. और जो लोग चल रहे हैं वो लोग जो चीज को अचीव कर लेंगे, इसको हम नहीं सोच सकते कि दूसरे जो नहीं चल पा रहे हैं वो अचीव नहीं कर पाए, सिर्फ सपने ले सकते हैं. इसलिए हेल्थ पैरों की जो है, पैरों की हेल्थ बनती है. हार्ट की हेल्थ कैसे बनती है? एज लॉन्ग एज जब आपका किसी भी आप फिजिशियन डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने अपने पेरेंट्स को ले गए हैं, तो क्या कहता डॉक्टर? चलिए सर हेल्थ के लिए. सो चलना फिरना इम्पोर्टेंट है. आई वन ऑफ द पोएम आई हैव रेड, चले वेद चले. गति ही जीवन है, ठहराव है. चले चले. ये हम बच्चों को देखते हैं, जहां पे देखिए इनको करेक्ट कर दिया. ये आयत ये पैर थे, अब इसकी ये हो. I gave so much importance to walking the feet and shaping our life that I have written a poem on the walking which I would like to recite to you. ये फिर भी हिंदी में हम इतना बोल नहीं पाए. अंतिम इसका ये है, चले बेटी चले. तो पुस्तक है, इसके बारे में हम आपको बताता हूं और सुनाता हूं. हिंदी में लगता है रामदास मिश्र का कवि मेरी अंतः चेतना में बिखरते हुए आवाज देता है. मेरे कमरे में अलमारियां हैं जिसमें देश विदेश की पुस्तकें पंक्तिबद्ध खड़ी हैं. अलमारी के पास ही मेरा बिस्तर है, उस पर लेटकर पुस्तकों को निहारा करता हूं. मन होता है तो किसी को निकालकर कुछ देर उसके साथ हो लेता हूं. मैं इन सब से गुजर चुका हूं, वे मुझसे गुजर चुकी है. लगता है खामोशी में भी वे परस्पर बात करती हैं, आती जाती हैं एक दूसरे में. जब कोई मेरे पास नहीं होता तो लगता है वे मेरे और नजदीक आ गई और कहती हैं हम तुम एकागार हो गए शब्द और अर्थ की तरह. कभी तुम मेरे पृष्ठ हो, कभी मैं तो उस धरती में पैदा हुआ हूं. जी मेरे बारे में, मैं तो उस धरती में पैदा हुआ जहां पर कांटे और कड़वाहट पैदा करने वाले नीम, बबूल और बेर की भरमार थी, लेकिन कहीं दूर पर पलाश की भी बुआर थी. इन कांटों और कड़वाहट के बीच पैदा हो गया हूं पलाश, जिसे विद्वानों ने नाम दिया है जंगल की आग. लेकिन समय आने पर बुझ जाती बड़ी बड़ी आगें. अब जीवन थोड़ा है, बताने को ज्यादा है. सच कहूं तो पुस्तकों से प्रेम मेरा पुराना है. अब जीवन थोड़ा है, बताने को ज्यादा है. धन्यवाद. अब जीवन थोड़ा है, बताने को ज्यादा है. सच कहूं तो पुस्तकों से प्रेम मेरा पुराना है. या यूं कहिए कोई प्रेम करने वाला नहीं था, पुस्तकों से प्रेम कर लिया. मुझे यह पता नहीं कि पुस्तकों से प्रेम कैसे हो गया, लेकिन इस बात का पछतावा नहीं कि पुस्तकों से प्रेम हो गया. वैसे तो मैं ज्यादा समय व्यस्त रहता हूं, लेकिन जब कोई दोस्त नहीं मिलता तो अपने पुराने दोस्तों को खोजता हूं और उन्हीं को संवाद करता हूं. मुझे लगता है कि पुस्तकें मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं. समय मिलने पर वो मुझे बुलाती हैं. उनमें से एक कहती है, दोस्त सीखने के 3 ही तरीके हैं, सीख के, देख के या कर. आओ दोस्त पास बैठो, मुझसे कुछ बातें करो. मैं वो बातें करूंगी जो तुमने सुनी नहीं होगी. मैं कहती हूं मेरी बातों को मानोगे तो जीवन अच्छा गुजरेगा, क्योंकि जीवन एक अनुभव है. वह तुम्हें नहीं, मुझे. वह अनुभव है, मैंने अपने जीवन में सीखा है. मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूं, सोचती हूं अपने अनुभव को तुमसे बांटूं, जिससे शायद मेरे लिखने वाले का जीवन तो नहीं संवरा, लेकिन तुम्हारा संवर जाए, यही मेरी इच्छा है. अभी आपने टीवी पे देखा होगा नेहा कक्कड़ के बारे में, संतोष आनंद जी के बारे में. आपने कई लोगों ने उस प्रोग्राम को सुना होगा. जिससे शायद मेरे लिखने वाले का जीवन तो नहीं संवरा, लेकिन तुम्हारा समझ जाए, यही मेरी इच्छा है. सच तो यह है कि मैंने अपने जीवन में व्यक्तियों से कम, पुस्तकों से ज्यादा सीखा है. पहले मुझे केवल लगता ही था कि पुस्तकें मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, पर आज मैं अपने अनुभव से आपसे निश्चित तौर पे यही कहूंगा कि व्यक्तियों की तुलना में पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त है. दोस्तों से प्रेम करो, पुस्तकों से प्रेम करो, तुम्हारी शुभचिंतक पुस्तकें. तो मैं तो
मैं जहां भी जाता हूं वहां से कोई ना कोई किताब खरीद लेता हूं, उस समय पढ़ने का मन होता तो वहां पे नहीं। गांधी जी also said that no to run a democracy what is really need is not knowledge of the facts but the correct education। शिक्षा की उनकी ये वैल्यू है। The creator of this Indian Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar, considered education as an important means to raise the status of the all citizens. For this, he not only promoted education, but also included it as an ideology and said, become educated, stay organized and struggle। मैं तो कहता हूं अंबेडकर के कहे हुए 3 मंत्र में से शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यदि हम सब लोग एक ही मंत्र को बांधे शिक्षित बनो तो शायद ना हमें संगठित होने की जरूरत पड़े, ना शायद संघर्ष करने की। और जिन्होंने इस मंत्र को पढ़ लिया है और समझ गए, वो साहब कहीं से कहीं पहुंच गए हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल्स के, इनके जो ऑफिसर्स हैं या जो सीईओ हैं, वो इसके एग्जाम्पल हैं जो कि हम और आप देख रहे हैं। Finally, I would like to express my gratitude to VC ma'am, Dr. Nirja Gupta, and who has kindly accepted my request to share my experience with all of you. I would like to thank Dr. Vikram Rawal ji for making my comfortable arrangement, and to Apurva who has gone to the hotel, and ma'am Mrs. Meenu Saraf ma'am जिन्होंने आए। मैं अंत में आपसे एक अपनी ही कविता, ये हमारी हिंदी की पोएट्री बुक है जो कि भारतीय ज्ञानपीठ ने छापी है, बाद में इसको वाणी प्रकाशन, इसमें लास्ट कविता है, सपने हमारे और आपके। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं, कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूं, कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते। सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के भी। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है। रात के सपने कम ही पूरे होते हैं दिन के अधिकांशतः। कवि कहते हैं, सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूं, अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुंच गए मंगल तक। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता है अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। वसुधैव कुटुंब का तो लोगो बना है G20 में मोदी जी के। उससे कहते हैं, वे अपने सपने बेच दो, उनकी तरह मैं भी परेशान हूं, क्या खरीदूंगा अपने सपने बेचकर। सपने ही तो सच्चे होते, अपने होते, यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं, यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन। सपने ही तो आधार है हमारे और आपके जीवन के। इन सपनों की नींव पर तो आज ये इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा, सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य हमारा आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो, और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। तो मैं इस बात को समझ लूं कि जिन लोगों ने क्लैपिंग की उनको तो समझ में आ गया, जिन्होंने नहीं की मैं उनको फिर ये पढ़ के सुनाता हूं। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा, सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य हमारा आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो, और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को सच में हमारी मैसेज मिल गई है। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा सपना ही तो था, और क्या। हमारे सपनों को संवारने के लिए आपको धन्यवाद, और आपके सपनों को संवारने के लिए हमारी शुभकामनाएं। Thank you. Thank you. So, as quoted by APJ Abdul Kalam, sir has told brief sapne, that is not that which you see while sleeping. It's something that does not let Allowed. you sleep. True, It true. is like that. बिल्कुल सही कहा। Right? Now, I would like to invite Dr. Rakesh Rawal to give a memento to Dr. BKS Sanjay sir. थैंक यू सर। आप किसकी चीज के प्रोफेसर हैं? अच्छा, मैंने कैंसर बहुत काम किया सर, बहुत काम। आई वाज कंसीडर्ड एज ए ट्यूमर। हमने एक और साइंस के स्टूडेंट में, आपको एक अदर देन लेक्चर का हिस्सा है, मैंने एक प्रोग्राम किया, उसमें एक लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं इसको, रीइम्प्लांटेशन ऑफ द ऑटोक्लेव ट्यूमर बोन ग्राफ्ट। रीइम्प्लांट का मतलब समझते होंगे,
कैंसर का था, ऑस्टियोसार्कोमा का इतना ट्यूमर था जिसको 6 इंच का था, 15 सेंटीमीटर का सर। तो हमने इसको निकाला। ऑस्टियोसार्कोमा इज कंसीडर्ड टू बी द ट्रू कैंसर। ब्लड ट्यूमर तो कैंसर हम बहुत लोगों को समझते हैं, दिस इज द मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर चाइल्डहुड। बट उसको हमने यहाँ पे निकालते हैं, बोन को निकालते हैं और ऑटोक्लेवर में, जिसमें हम स्लाइस करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं, आप लोग भी लैब के सभी लोग हैं, जानते हो, करते हैं ना। तो उसमें करने के बाद उसको क्या किया कि उसको निकाला, ट्यूमर को निकाला 6 इंच, और उसको फिर ऑटोक्लेवर का जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, मसल्स वगैरह होती है, बोन बोन रखते हैं, ऑटोक्लेवर में डाल देते हैं, फिर उसको ऑटोक्लेव करते हैं 5 मिनट्स के लिए एट द हाई डिग्री टेम्परेचर 131%। यूजुअली 121 पे ऑटोक्लेविंग होता है, तो 10 मिनट्स कर लें, 55 मिनट्स कर लें। क्लीन किया, नॉर्मल सलाइन से साफ करके फिर उसको उसी पे लगा दिया सर, एंड द बोन रीजेनरेटेड। द गर्ल वॉज 15 years old एट दैट टाइम। आपको बताऊं, जब मैंने लड़की से मैंने कहा, मैं एक्चुअली मैं बोन ट्यूमर सर्जन ऑफ द इंटरनेशनल फेम। इनफैक्ट माय वर्क इज पब्लिश्ड इन द इंडेक्स जर्नल्स। आप JBGS आता है, जनरल बोन जॉइंट सर्जरी इंटरनेशनल ऑर्थोपेडिक्स में, ऑटोक्लेव। आप मेरा नाम डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो दोस्त हु आर इंटरेस्टेड टू परस्यू द रिसर्च और ऑल। उसको इम्प्लांट किया, रख दिया, रिजेनरेट हो गई सर। The girl was 15 years at that time. तो उसका एक टांग डॉक्टर्स ने कह दिया, no, you need the amputation, so limb will be amputated. And nobody wants that teenagers girl to get the amputated. You saw, आजकल तो सुंदर लड़कियों की भी शादी नहीं हो रही, और जो किसी तरह से विकलांग है, दिव्यांग है, डिसेबल्ड है, उनके लिए तो प्रॉब्लम होगी। तो कहता नहीं डॉक्टर साहब बचाइए। तो हमने कहा हम ऐसे बता सकते हैं। तो आइडिया वाज बेग फॉर देम एंड दे वर नॉट करना। तो कहते अब मरता क्या ना करता, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, टांग अभी कटवानी बाद में कटवानी। दे एग्री, so I did the procedure. And the good thing is about that, that girl is now 30 plus. 30. She is surviving. And couple of years back, she asked me, sir, क्या मैं शादी कर सकती हूँ? Because now she has become a teacher है, वो इसमें सेंट्रल स्कूल में, BHEL का एक सेंट्रल स्कूल है, उसमें KB में टीचर है। और उसके बाद उसने नॉट ओनली दिस थिंग, फिर कहती है कि सर मैं शादी कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती शादी? फिर उसने पूछा, सर मैं शादी कर लिया, अब मैं क्या कंसीव कर सकती हूँ? व्हाई नॉट? तो उसने कंसीव किया, एंड द गुड थिंग, द गर्ल नॉमिनेटेड माय नेम फॉर द पद्मश्री। थैंक यू Dr. BKS Sanjay, our School of Science Director, Dr. Minu Sharaf Madam, Coordinator, Dr. Vikram Rawal Sir, and all the faculty members and the students who have spent their time over here. Thank you once again and have a good day. Thank you.